इससे हमको इसको नाम देना, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल को। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। Good afternoon, sir. Yes, all the boys and girls, good afternoon. And let us continue our programming further. Till 2 sessions we have finished of practical. You must have got the idea that C++ is very much easy to implement. Okay, you don't have to remember complex formats of C language. And there are more to that also. C++ is not only this much. It is offering so many other functionalities also. So as the time comes, I'll show you one by one. Let me present the screen first. So when I show some concepts, I expect that other things you may practice at your home. उसी टर्बो सी में आपको वर्क करना है, तो आप जो प्रोग्राम दिए हैं, though it is a screenshot with you, but you can type the same program and once for yourself check whether the program is running perfectly or not. You can make changes to that program. You can improve the logic also, as I told you yesterday. Fine. Okay, I have presented my screen and let us go further now. Now, before going to C language, let me show you the syllabus and we'll just see how we are using variable. No, variables we have started using it. Today we will take the idea of reference variables. What is this? How they are used? It was not used in the C language. Okay. So what is the reference variable? Which are the features of it and how it is useful? So C language provides you some extra features. One of that is reference variable. You can see below. Default argument is also new concept. Inline function new concept. Scope operator also new concept. This all will come. Function prototyping is there. Function overloading also good concept. These all concepts will be there one by one. So reference variable आप देखेंगे. उसके पहले उसके बारे में और एक टॉपिक देखे थे छोटा सा. Open up our previous file. I think it was brg5. This is the file. क्या था इसमें? एम्प्लॉय का नाम और एज ले लो, फिर वो रिटायरमेंट के लिए कितने साल है वो बताओ. In this program also we said that you can improve also this program. You can modify this program. If the entered age is more than 60, you can display that it is a senior citizen already. If it is below 60, then only it can find out this difference of age. That improvement I leave it upon you. बराबर है? ये जो remaining years है ना, 60 माइनस किया है, ये तभी होना चाहिए जब वो एज की वैल्यू 60 से लेस हो. ओके, तो ये कंडीशन आप इसमें डाल सकते हो. ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम लेंगे. मैं आज एक और एक प्रोग्राम लेने वाला हूँ, प्रोग्राम 6. सेव एज कर लेता हूँ, prg6.cpp. तो अपने आप cpp लगा देगा, prg6. एंड लेट मी क्लियर ऑल दिस. अब तक के जितने प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट सारे सबको क्लियर हो चुके हैं, राइट? Yes, sir. गुड. तो आज एक लिए जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ना, C++ में आपको ये फैसिलिटी है कि आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में. अगर C होता तो ऐसा अलाउड नहीं करता. So what is that concept? You can declare a variable anywhere in the program in C++, but it is not the case with C language. In C language, you must declare variable at the starting of the program, right? Before any executable statement. So एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें आपको बता सकता हूँ कि write a program to input. एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं. चलो कौन सा? इंटरेस्ट प्रिंट करने का, राइट? इंटरेस्ट प्रिंट करने का प्रोग्राम. Principal amount, rate of interest, and duration years. ये इनपुट करो, डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट और ऐसा कोई प्रोग्राम है. प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ड्यूरेशन के ईयर्स आपको इनपुट करने यूजर से, उसका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करवाना है. तो हम क्या करेंगे? डेफिनेशन तो क्लियर हो गया.
हमको यहाँ पे वेरिएबल लेना है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मैंने ले लिया इंटीजर AMT अमाउंट, बराबर है, ओके। देन इवन ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स जो है वो भी वाई ईयर्स, ये दोनों इंटीजर रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.3, 12.5 फ्लोट होगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो फ्लोट में हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट इतना 3 लिया और मैंने यूजर से यहाँ से वैल्यू लेना स्टार्ट किया। चलो हम पूछते हैं, स्क्रीन पे एक मैसेज डालना है मुझे, क्लियर स्क्रीन तो आना चाहिए। ये दोनों ना क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच वो हमने स्टैंडर्ड रख दिए है, उससे प्रोग्राम का आउटपुट अच्छा दिखता है, ठीक है। चलो तो नाउ विच स्टेटमेंट आई विल राइट डाउन हियर, मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। वेरी गुड, सी आउट में एक मैसेज डाल देंगे, वेरी गुड। एंटर अमाउंट, साथ में ले सकते हैं अमाउंट, रेट एंड ड्यूरेशन, सेमीकोलन। हाँ बोलो सर। वो आपकी आवाज के साथ में पार्थ सर की आवाज भी आ रही है ज्यादा। दूसरे सर की आवाज भी आ रही है। सर की आवाज भी आ रही है, अच्छा। नहीं, इसलिए मैंने हेडफोन भी लगाया है सो दैट कि थोड़ा आवाज कम हो जाए। एक मिनट, हाँ थोड़ा धीरे, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ तो सुनाई देता है क्या, सुनो। अभी क्लियर है साउंड? यस सर। ओके, एक मिनट। टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट स्लैश एन देता हूँ मैं एक की लाइन के अंदर। हेलो, हाँ ठीक है, गेट सी एच, सी इन, इनपुट करना है मुझे। पहला वेरिएबल कौन सा होगा, AMT, दूसरा वेरिएबल होगा रेट, चलो, और तीसरा वेरिएबल होगा ईयर्स। कीबोर्ड से जो भी 3 वैल्यू पास होगी वो तीनों में स्टोर हो जाएगी। रेट हमको याद रखना है कि फ्लोट में लेना है वहाँ इनपुट करते वक्त। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसका वेरिएबल जैसे सी होता तो मुझे ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ता, लेकिन मुझे यहाँ पे C++ में जहां मुझे जरूरत है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिखा हूं मैं, इक्वल टू क्या है फॉर्मूला उसका, अमाउंट, हाँ PRN अपॉन 100, अमाउंट, रेट और ईयर्स, है ना, एंड देन डिवाइड बाय अपॉन 100, बराबर, ये उसका फॉर्मूला हो गया। तो ऐसा ही जो है जहां पे मैं अभी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके ऊपर ही यहाँ पे सीधा उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये जो फ्लोट ऐसा ही मैंने डिक्लेयर किया, ये C++ में यहाँ पे अलाउड है इन C++, बट नॉट इन C, बराबर। C के अंदर यहाँ पे ऐसे लगना था, C के अंदर ऊपर ही अलाउड था, जहाँ पे सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए ना वही करना पड़ता था। C++ में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया, आपको फ्रीडम मिल गया कि आपको जहां भी वेरिएबल यूज करना है, बिफोर यूजिंग द वेरिएबल, ये यूज किया हमने यहाँ पे, उसके पहले आप उसको कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। दैट इज द फ्रीडम यू हैव। देखते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस है। सी आउट के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे ना, स्लैश एन, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू, ऐसे करके ऐसा की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। देखते हैं इसमें रन करके क्या चेंज होता है, फिर आगे देखते हैं। F2 सेव किया, यस, एंड अल्टर F9, कोई एरर, ओके नहीं है, कंट्रोल F9 टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो बाद में स्लैश एन दिया था, इसलिए नए लाइन पे आ गया, एंटर अमाउंट, रेट एंड ड्यूरेशन। अमाउंट लेटर से 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5, फ्लोट वैल्यू F देते हैं, और ड्यूरेशन है लेटर से 2 इयर्स। ओके, इंटरेस्ट 0 क्यों आया, चलो फाइंड करो। वो F नॉर्मली टाइप करते हैं फ्लोट बताने के लिए, अदरवाइज वो डबल काउंट कर लेता है, ऐसा कुछ था। एक मिनट, फिर से रन करते हैं। ड्यूरेशन इज 3000, बराबर है 12.5, F नहीं देते हैं, और लेटर से 2 इयर्स। अच्छा, F नहीं दिया तो आ गया, राइट, चलो ठीक है, उसने ले लिया फ्लोट। 750 करेक्ट आंसर है। सर हाँ,
थोड़ा सा और, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा फ्लोट में चाहिए हमको फिर भी, और तो और थोड़ा इसको वापस एक बार करते हैं। अब भी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, हाँ, ये करिए, एक मिनट पार्सर, राइट, ओके। तो सपोज આપણે 3240 એવી કોઈ અમાઉન્ટ લઈએ, બરાબર છે, અને 12% લઈએ અને 2 વર્ષ લઈએ. Now amount is 3240, 12.44 is rate of interest and duration is 2 years. What could be this simple interest? हाँ, can you see now? Interest equal to 806.112. तो 806.112 ये 12.44% है इस अमाउंट के 3240 के. भी हो सकता है, लेकिन हमको ये बताना है कि इसके अंदर इंटरेस्ट वाला जो वेरिएबल था, सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा SI. SI can be used, can be declared before it is used anywhere in the program. SI वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लिया. गेट CH के पहले आपको और कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कर सकते हो. सी में ये अलाउड नहीं था, सी में ये फ्लोट ऐसे यहाँ नहीं लिख सकते, वो एरर बताता हूँ आपको. सी में आपको ये ऊपर इंटीजर अमाउंट ईयर लिखा है ना, वहीं पे फ्लोट में आपको SI भी डिक्लेयर करना पड़ता. तो ये एक और एक चेंज था कंटिन्यूएशन में, इसलिए आपको बताया. तो आपको जस्ट याद रखना है, ऊपर यहाँ लिख सकता हूँ मैं जस्ट. सर रिटर्न 0 के बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ भैया, फ्लोट रेट के बाद यहाँ पे ना सर वो रिटर्न नीचे वो लास्ट में रिटर्न 0 है ना? नहीं, रिटर्न 0 कुड बी लास्ट स्टेटमेंट. इट शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट, बराबर है. मस्ट बी लास्ट स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम. उसके बाद अलाउड नहीं है. रिटर्न 0 मतलब वहां से फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो उसके नीचे अलाउड नहीं होता. ओके, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने, करेक्ट. रिटर्न 0 मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम. उसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते. हाँ, गेट CH के नीचे भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो. रिटर्न 0 कुड बी लास्ट वन. और जो SI का है, फ्लोट SI लिखा है ना, यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ. वेरिएबल कैन बी, मैं आपको प्रॉपर वही सेंटेंस ही बताता हूँ जो वो अलाउ करता है. जस्ट अ मोमेंट. सो आपको एग्जिट वो स्टेटमेंट आए तो बेटर रहेगा. चलो मैं वही आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जो हमारे नॉर्मल. एक मेरे पास हार्ड कॉपी है बुक की, लेकिन PDF नहीं है, तो जब भी जरूरत होगा तो मैं उसमें कुछ इमेज है तो स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी. वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज. बस ये लाइन है जो मेन ध्यान में रखनी है. वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज. यस सर. जहां भी आपको रिक्वायर्ड है वहां पे आपसे, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी आपने. C++ ने प्रोग्रामर को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि आपको ऐसा याद नहीं रखना कि सारे वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर होने चाहिए. जैसे जैसे प्रोग्राम लिखते जाते हो, जैसे जैसे आपका लॉजिक आगे बढ़ता है, wherever you find कि you required a variable, there only you declare it and start using it. Just before use के पहले करना है, वो तो आपको भी पता है. ये SI वाला है स्टेटमेंट नीचे, ये रहा. ये स्टेटमेंट जो है उसके नीचे में फ्लोट ऐसे नहीं लिख सकता, उसके ऊपर लगना पड़ेगा बस, जस्ट बिफोर दैट. ये तो आपको सबको पता है कि पहले डिक्लेयर होता है, बाद में यूज कर सकते हो. तो ये कहीं भी लिख सकते हो इस तरह से, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गया. ओके, चलो तो F2 सेव यस. प्रोग्राम, अच्छा /n में मैंने स्पेस दिया था इंटरेस्ट के पहले, इसलिए वो स्पेस बता रहा है. यस, कंट्रोल F9. रियल वैल्यूज लेते हैं. आई हैव 3500 अमाउंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5 summers and years are 2 years. Very good. This is the, तो हम लेते पहले इसको आउट
स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो टेक अ पिक ऑफ दिस, डन, राइट, एंड टेक अ आउटपुट। क्या आउटपुट ऐसा आएगा, राइट। हाँ, अभी हम एक और एक टॉपिक लेते हैं, छोटा सा है लेकिन उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। सो आई जस्ट शो यू दैट सी प्लस प्लस कैसे प्रोवाइड करता है आपको, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। आपने सी प्रोग्रामिंग में वो पास थ्रू वैल्यू, पास थ्रू रेफरेंस ऐसा कुछ सीखा था, फंक्शन के अंदर था, है ना? हाँ, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होती है तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस ऐसा लिखा था आपने। तो उसमें रेफरेंस मतलब वो M% करके एड्रेस पास करते थे, इफ यू रिमेम्बर, राइट? यस सर। बस तो वैसे ही कंसेप्ट पे यहाँ पे एक स्टेप आगे है कि M% लिख के कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो तो उसको रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे, और उसको किसी और वेरिएबल का रेफरेंस दे सकते हो, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द यूज ऑफ इट। सी प्लस प्लस ऐसा सोचता है कि अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है, रीड करना है, यूज करना है, तो एक के बदले ज्यादा आपको अलग अलग वेज आपके पास अवेलेबल है। Just deleting all this for a moment. Fine, and let me delete all this also. प्रोग्राम को यूज, ऐसा नाम है वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। क्या है उसके फीचर्स वगैरह देखते हैं आपने के बाद। रेफरेंस वेरिएबल क्या है पहले वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर x, ये मैं वेरिएबल लेता हूँ एक, बराबर है, और x इक्वल टू 10, जैसे इन द इंटीजर रेफरेंस पॉइंटर जैसे ही रेफरेंस r, चलो इक्वल टू, उसी टाइम पे आपको उसका देना पड़ेगा रेफरेंस, किसका है, कौन से वेरिएबल का है। नाउ अगर मैं सी आउट करता हूँ और x की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, फिर डबल कोट्स में एंड करके सपोज r की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। क्लियर स्क्रीन करना चाहिए पहले ना हमको, ठीक है। क्लियर स्क्रीन ऊपर लिख देता हूँ। क्या है ये चीज, देखिए अभी R is a reference variable to variable x, variable x। इसका मतलब होगा क्या मालूम, x की जो वैल्यू है वही r की वैल्यू रहेगी। r में हमने कोई अलग से वैल्यू डालनी है, राइट। एक फायदा ये होगा कि x में जो भी चेंज करेंगे r में भी आपको वही चेंज मिलेगा। फिर से बता रहा हूँ कि नॉर्मल है, x इज अ वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल, x के अंदर वैल्यू 10 स्टोर कर दी है मुझे, और मैं वो वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो भी मुझे 10 बताएगा। देन आई डिक्लेयर्ड वन न्यू वेरिएबल, M% से एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर होता है, और उसका वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जो डिक्लेयर करते हो ना, उसी टाइम पे उसको इक्वल टू करके इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, मतलब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन शुड बी टुगेदर। सिंपल आप ऐसा लिख दो, ऐसा ऐसे, और फिर बोलो r इक्वल टू x, ऐसा नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, इंटीजर M% r ऐसा नहीं चलता है। रूल इज दैट कि वो जब डिक्लेयर हुआ है तभी उसको असाइन भी करो वैल्यू भी। फिर कोई वेरिएबल असाइन कर दिया, क्योंकि x वाला वेरिएबल है, उसमें जो भी वैल्यू है वही वैल्यू r वाले में भी मिलेगी आपको। इट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, वो रिफर कर रहा है, r वेरिएबल रिफरिंग टू वेरिएबल x फॉर द वैल्यू। चलो सेव करता हूँ मैं, अल्टर F9, कंपाइल, एंड हमारे क्या करना है, हमने वैल्यू 10 स्टोर की है x में, और हम वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं r की भी, और वो भी दिखानी चाहिए x जितनी ही। कंट्रोल F9, कैन यू सी बोथ द वैल्यूज? यस सर। यस। हाँ, तो इसका मतलब है कि x में जो वैल्यू है वही वैल्यू हम r से भी रिफर कर सकते हैं। अब उसमें फायदा क्या है, वॉट एवर आई विल मेक चेंजेस, जैसे x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज, पोस्ट इंक्रीमेंट, बराबर है, हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। अगर मैं लिखता हूँ सी आउट x की वैल्यू, एंड बिकॉज r रेफरेंस वेरिएबल है तो x में जो भी चेंज होगा
वो चेंज आर में भी दिखाई देगा। तो अगर एक्स की वैल्यू प्लस प्लस हुई है तो यहाँ सिर्फ एक्स की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यू बढ़ेगी। कंट्रोल F9 सेशन देना रहेगा, क्योंकि सी एक्स की वैल्यू 11 है तो आर भी 11 हो गया। बोलो समझ में आया ये चीज? सर एक यस सर। इजी कंसेप्ट, इजी फंक्शनलिटी। हाँ ये बताएं, ये उसका रूल है, उसका सिंटेक्स है कि रेफरेंस वेरिएबल का नाम भी कुछ भी हो सकता है, आगे एम्परसेंड देना है। वो बता रहा है कि ये वेरिएबल रेफरेंस वाला है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो हाँ, डेटा टाइप तो ये रहेगी, एम्परसेंड लगाना है और वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हो, इक्वल टू करके उसी टाइम पे आपको एक्स दे देना है। दैट इज वन थिंग। दूसरा फायदा ये मिलता है, व्हेनेवर ओरिजिनल वैल्यू में आप चेंज करोगे तो आपको रेफरेंस में चेंज मिलेगा, या तो उल्टा अगर आप रेफरेंस में चेंज करोगे तो ओरिजिनल में चेंज मिलेगा। हाँ बोलिए। नो सर, सॉल्व कर दिया आपने। लास्ट लाइन बोले ना आपने, हाँ, रेफरेंस में चेंज। बस हाँ, रेफरेंस में देखिए आर माइनस माइनस कर रहा हूँ और वही सी आउट देखते हैं, एक्स में वैल्यू चेंज हुई कि नहीं, चलो देखते हैं। एंड आर, अब इसमें मुझे एक ध्यान आया कि सब जगह पे ना स्लैशन लिखना है, बराबर है, तो डबल कोट स्लैशन ऐसा लिख देता हूँ मैं, तो न्यू लाइन पे आ जाएगा ना। अब दूसरा एक चीज आपको यही बता देता हूँ आज कि स्लैशन के बदले C++ में ENDL एंड लाइन ऐसा करके एक कमांड है, इट वर्क्स सेम एज स्लैशन। यू कैन सी द आउटपुट, मैं बता रहा हूँ आउटपुट देखिए। तो पहले x की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे x 10 बताएगा, x प्लस प्लस किया तो 11 हो गया, तो इस लाइन पे दोनों की वैल्यू 11 बताएगा। माइनस माइनस किया लेकिन r को किया है तो दोनों की वैल्यू वापस 10 हो जाएगी। और मैंने पहले में स्लैशन लिया है, डबल कोट में स्लैशन जो काम करता है वही काम C++ एक नया कमांड है ENDL एंड लाइन, तो वहां पे लाइन एंड करके जो भी उसके पीछे का आउटपुट है उसको नए लाइन पे लाता है। एंड लाइन का मतलब है वो करंट लाइन है उसको वहां पे एंड कर दो और न्यू लाइन पे आ जाओ, तो उसके पीछे जितना लिखा होगा एंड लाइन के बाद जो भी लिखा है वो नई लाइन पे आएगा। स्लैशन जैसे ही काम हो गया, बराबर है। तो दिस इज ENDL इज अ कीवर्ड, इज अ कमांड इन C++, इट वर्क्स सेम एज स्लैशन। इसको दूसरा हाँ स्लैशन जैसे काम करता है, उसको दूसरा हम बोलते हैं मॉडिफायर, ये मॉडिफायर बोल सकते हैं इसको। सो इट्स अ C++ मॉडिफायर और वो आउटपुट को मॉडिफाई करता है। F2 अल्टर F9। सो आउटपुट क्या बताना चाहिए, पहले 10 10 फिर 11 11 और लास्ट में वापस 10 10। चलो देखते हैं। Can you see? यस सर। तो लास्ट वाला 10 10 आया, हाँ लास्ट वाला जो 10 10 आया वो क्यों आया, हमने R को माइनस किया है, X को थोड़ी किया है। बट X R जो है वो X को रिफर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, X में कुछ भी चेंज करेंगे तो R में इफेक्ट दिखेगा, R में कुछ भी चेंज करेंगे तो X में इफेक्ट दिखेगा। ये तब काम में आता है जब आपके रियल प्रोग्रामिंग के अंदर आपका कोई वेरिएबल है, उसका नाम जो है वो सेंसिटिव है, आपको यूजर को वो नाम नहीं दिखाना है और आपको यूजर को कोई और नाम दिखाना है, तो उस टाइम पे ऐसा काम में आ जाता है कि आप उस नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाओ, यूजर को रेफरेंस वेरिएबल दिखाओ नाम है, लेकिन इंटरनल नाम जो आपको काम का है, सेंसिटिव नेम ऐसा कुछ होता है प्रोग्रामिंग में, तो वो आप रख सकते हो। बोलो समझायो आटलू? यस सर। ગુડ, એટલે કે ઈઝી કન્સેપ્ટ છે રેફરન્સ વેરિયેબલ ઇન C++। આ છે। હવે આપણે એના ફીચર્સ જોઈએ, આમાંથી અમુક આગળ ફીચર્સ કામમાં આવશે। એટલે હું અહીંયા છે ને હવે સ્લેશ સ્ટાર અને સ્ટાર સ્લેશ આવું કરીને, ધીસ ઇઝ મલ્ટીલાઇન કમેન્ટ, રાઈટ? મલ્ટીલાઇન કમેન્ટ FAD फीचर्स ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। कौन कौन से फीचर्स है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 से लिखने वाला हूँ और हम वो फीचर्स का मीनिंग समझेंगे। ऑलरेडी हमने 2-3 फीचर तो यूज कर लिए, एक का इंक्रीमेंट करो दूसरे का इंक्रीमेंट होता है, जो डिक्लेयर किया तभी इनिशियलाइज करना है, वो सारे उसके फीचर्स हैं, ऑलरेडी हमने रन कर लिया। अगर कोई फीचर्स दूसरा लगता है हमको तो हम वो रन करेंगे। चलो मैं फीचर्स लिखता हूँ 5 7 लिखने को, चलो क्या क्या फीचर्स है, लेट्स सी। मैं जो लाइन से बुक वाली वही आपको एग्जैक्ट लिखवाता हूँ तो बेटर रहेगा। हाँ, फर्स्ट वन, इट मस्ट बी, रेफरेंस वेरिएबल आगे पढ़ लेने का, बराबर है। इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन।
समझ में आया ये? इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। हाँ, और उसके लिए एग्जांपल वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। यस सर। इंटीजर डिक्लेयर किया हमने, रेफरेंस आर नाम दे दिया, उसी टाइम पे इक्वल टू करके उसकी वैल्यू देनी है आपको, तो कोई वेरिएबल उसको रिफर करवा दो। तो ये उसका पहला फीचर है। ओके, इजी है। चलो सेकंड लिखते हैं। सेकंड, once it is made for a variable, it cannot be made to refer any other variable. वेरिएबल बराबर। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बताएगा? अगर हमने x को डिक्लेयर किया तो हाँ, अगर r x को रिफर कर रहा है तो फिर r किसी और को रिफर नहीं कर सकता। कैसे है हम आगे देखते हैं इसमें कहीं पे। वेरी गुड, ये पहला वाला पॉइंट हो गया। इवन चलो ना यही इसी के साथ, क्योंकि यही आगे बढ़ेगा अपना, क्योंकि हम अभी तो हमको फील्ड में इंटीजर x से तो y लेता हूँ मैं, बराबर ना, और मैं y की वैल्यू करता हूँ लेट अस से 20। अब मैं बोलता हूँ कि जो इसको रिफर करवाना है r वेरिएबल इक्वल टू y की वैल्यू स्टोर करो। अभी तो वो x की वैल्यू स्टोर करा था और r माइनस में किया था लास्ट में यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कितनी 10 थी। इंटीजर y है, y इक्वल 20, r इक्वल टू y करके दिख रहा हूँ मैं। r किसको रिफर कर रहा है? x को। और अभी मैं r को क्या कर रहा हूँ? y की वैल्यू रिप्लेस करवा रहा हूँ। क्या वो वैल्यू रिप्लेस करेगा? लेट अस सी। सी आउट। हाँ, स्लैश नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं करना, मतलब इट शुड नॉट रिफर टू अदर वेरिएबल, उसको रिफर नहीं कर सकता। एक्चुअली मुझे उसकी है ना। अच्छा, चलो आपको दिखा देते हैं पहले कि कौन सा वैल्यू है। x का वैल्यू बताता हूँ, x एंड r अपना रेफरेंस वेरिएबल वो देखना है, एंड अपना नया वेरिएबल कौन सा है? y। अब इसमें क्या करता है? r जो है, r विल नॉट रिफर टू y। ये स्टेटमेंट क्या करेगा? ये स्टेटमेंट जो है y की वैल्यू किसमें डालना चाहेगा? वो r में। r में। लेकिन r तो किसको रिफर कर रहा है? x को। तो इनडायरेक्टली ये हुआ, इनडायरेक्टली y is stored into x। r के थ्रू वो x में जाके स्टोर हो जाएगा y की वैल्यू इनडायरेक्टली। विल सी दैट हाउ इट इज। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है ना, अभी वो चेंज कर देगा। उसके 10 थी, उसकी वैल्यू 20 होनी चाहिए। r की वैल्यू बिकॉज वो x को रिफर कर रहा है, वो भी 20 बताएगा, और y तो 20 है ही। तो ये r का अपना r, मेरे कहने मतलब r जो है वो y को रिफर नहीं कर रहा है, x को रिफर कर रहा है। कैसे वो हम बताएंगे, पर अभी ये तीनों के अंदर ना 20 वैल्यू आएगी, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ऊपर का, y वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू r, बट r को अपना खुद का वैल्यू है ही नहीं, वो तो रिफर कर रहा है x को। तो इनडायरेक्टली y जा रहा है x के अंदर, और r किसको बिलोंग कर रहा है? ये रहा r, तो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? x को। इसलिए वो यहाँ पे x की वैल्यू बन जाएगी 20, और r की वैल्यू भी 20 ही बताएगा, और y की अपनी 20 है ही। कंट्रोल F9। चलो रन करते हैं। कैन यू सी दिस? वेरी गुड। तो इसमें ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा ना ऊपर वाला, कहाँ गया? इसका भी इफेक्ट बताते हैं।
वंस इट इज मेड फॉर अ वेरिएबल, एक बार वेरिएबल के साथ बना दिया लिंक, तो इट कैन नॉट बी मेड टू रिफर अनदर वेरिएबल, उसको रिफर तो नहीं कर सकता। कैसे? तो लेट अस सी द एड्रेसेस ऑफ इट। आपको एड्रेस पता है? हाँ बोलिए सर एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर दो सर। हाँ देखो फिर से बताता हूँ, मुझे कहीं और भी आपको दिखानी है चीजें, चलो यहाँ दिखाता हूँ पहले मैं। सी आउट स्लैश एन, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ, कहाँ गया, एड्रेस ऑफ एक्स, तो क्या बताएगा? किसी को पता है? बोलिए। एक्स का एड्रेस, हाँ एक्स का रैम वाला एड्रेस, करेक्ट, एक्स का रैम वाला लोकेशन एड्रेस। हाँ, और मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ आर, आर भी खुद कहीं पे होगा ना, करेक्ट, पर आर किसको रिफर करेगा? एक्स को ही रिफर करेगा, एक्स को। तो हाँ, तो यहाँ पे जो एक्स का एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको आर का बताना चाहिए, क्योंकि वो मिलेगा। और यहाँ नीचे आप देखोगे, अभी मैं वही लाइन यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सी आउट, इसको करने के बाद देखते हैं, तो भी चलो, सी आउट स्लैश एन, यहाँ पे एक्स का एड्रेस देखो, एंड करके आर का एड्रेस देखो, एंड करके वाई का एड्रेस देखते हैं। ऑब्वियसली वाई का तो नया एड्रेस होगा क्योंकि नया वेरिएबल है, करेक्ट। आएगा कि हमने ये स्टेटमेंट लिखा है r इक्वल टू वाई, तो वो y की वैल्यू r के थ्रू x में जाके स्टोर होगी, लेकिन r खुद y का एड्रेस होल्ड नहीं करेगा। अगर होल्ड करता तो यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ r है ना, वो और एड्रेस ऑफ y वो दोनों सेम दिखने चाहिए। तो लेकिन हमारा रूल ऐसा बोलता है कि r कभी भी y का एड्रेस होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज वो एक बार रिफर जिसको कर दिया उसी को रिफर करता है, नए वेरिएबल को रिफर नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको ये चीज? यस सर। यस सर। चलो मैं ये पहला वाला है, उसके ऊपर गेट सीट डाल देता हूँ आपको यहाँ पे वेट करने के लिए। हाँ बोलिए। यस बेटा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। ओके, तो ये अपना पुराना आउटपुट है, उसमें एक सी आउट जो था जहाँ पे एक्स और आर की वैल्यू 10 बता रहा था, वहां पे उसका एड्रेस भी चेक कर ले कि भाई एक्स का जो एड्रेस है आर उसी एड्रेस को रिफर कर रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। और गेट सिस के बाद इंट वाई मतलब एक नया वेरिएबल हो गया, तो नया एड्रेस, उसके अंदर 20 वैल्यू, और ये आर इक्वल टू वाई जो है वो वैल्यू ट्रांसफर करता है, ना कि एड्रेस। वो लिखा है फीचर वाला, वो कंफर्म होगा कि आर हमेशा एक्स को ही रिफर करेगा, उसी का एड्रेस पकड़ेगा, वाई का एड्रेस नहीं पकड़ेगा। रन करता हूँ, देखिए अभी ये जो एड्रेस है, पहला एड्रेस एक्स का था, दूसरा एड्रेस आर का था, राइट? कैन यू सी बोथ द एड्रेस आर सेम? हाँ, और अभी ये एड्रेस कैसे डिकोड करना है? देखो एड्रेस कैसे डिकोड करना है, स्टार्टिंग में लिखा है OX, मतलब क्या हुआ? आपने नंबर सिस्टम देखा था सेम 3 में, नंबर सिस्टम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा, ऐसा बोला था ना कि ये नंबर, यस, ये नंबर जो है, ये एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल है। क्यों? देखो बीच में कहीं पे एफ दिख रहा है आपको, यस सर। हाँ, तो दैट मीन्स ये एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल एड्रेस है। हेक्साडेसिमल एड्रेस जब भी बताता है अपना कंप्यूटर हमको, तो उसके आगे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, उसके आगे वो OX लगाता है, सॉरी 0x, मतलब 0x आगे लिखा, उसका मतलब बाद वाले जो भी डिजिट है वो हेक्साडेसिमल है। सिर्फ प्रीफिक्स में सिर्फ 0 लिखता, ओनली 0, तो बाकी के एड्रेस कैसे होते? ये उस टाइम नंबर से इंटीजर नहीं, बाइनरी तो 0 1 0 होता है, ऑक्टल, करेक्ट। इफ द प्रीफिक्स इज ओनली 0, then the remaining digits are octal. सेंटेंस सुनो फिर से, if the prefix is 0, then the remaining digits are octal. But if the prefix is 0x, digits are in hexa. बोलो समझ में आ गया ना? यस सर। वेरी गुड। तो पहला वाला एड्रेस है वो 8F91FFF4, ये हुआ एड्रेस ऑफ वेरिएबल x, और दूसरा जो एड्रेस है वो वेरिएबल r का था, बट r रिफर कर रहा है x को, इसलिए दोनों का एड्रेस देखो सेम दिख रहा है।
एड्रेस है रैम का। मेरी लैपटॉप में जो टर्बो सी ओपन किया उसको प्रोसेस करने के लिए, इस प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रैम एलोकेट किया, उस रैम मेमोरी के अंदर एक्स वेरिएबल के लिए जो उसको एड्रेस मिला है, रैंडम होता है एड्रेस, तो और ये वो एड्रेस है, ये लाइव एड्रेस है अभी, इसके अंदर वेरिएबल एक्स की वैल्यू स्टोर है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अरे राइट, वेरी गुड। और सेकंड चीज ऐसी होती है कि हम ये वेरिएबल को एक्स वाई जेड क्यों लिखते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि आप लोग या तो हम लोग प्रोग्रामर्स, वी कैन नॉट रिमेम्बर ऑल दिस हेक्साडेसिमल एड्रेसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बराबर है? लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग ये हेक्साडेसिमल एड्रेसेस रिमेम्बर नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रोग्राम देता है वेरिएबल का, ये एक्स वाई, ये तो आर, ये जो नाम है ना वो हम इजीली याद रख सकते हैं। तो एक्स क्या है? एक्स एक सिंबॉलिक नेम है इस एड्रेस का, अदरवाइज आपको सीधा इस एड्रेस पे काम करना पड़ेगा। 8F91FFF4 ये एड्रेस पे जाओगे तो आपको 10 वैल्यू मिलेगी, बट बिकॉज ये एड्रेस हम पूरा याद नहीं रख सकते, नॉट अ एफिशिएंट प्रोग्राम आल्सो कैन रिमेंबर दिस एड्रेसेस। अभी तो एक ही वेरिएबल है, 50-40 वेरिएबल हो जाए तो सभी वेरिएबल के एड्रेस किसी को याद रहेंगे? नो। That's why to make it simplify for the programmer and user, this programming language gives you the concept of variable. Otherwise, variable is nothing but the symbolic name only. बराबर? So at this moment you can see, हाँ, और कोई बताएगा ये कितने बिट का एड्रेस है? हेक्साडेसिमल का एक डिजिट मतलब कितने बिट्स? 16 होता है? नहीं, वो तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है, पावर होता है 16, तो 0 to 9 A to F 16 डिजिट हो गए, बराबर है? पर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ एक डिजिट 8 बिट नहीं। बाइनरी के कितने बिट्स? मतलब हेक्सा 2 बिट। नहीं, हेक्सा का एक डिजिट, हेक्सा का एक डिजिट और बाइनरी के कितने बिट्स? 2 बिट। ऐसा कुछ 2 बिट नहीं बेटा, 2 बिट नहीं 4 बिट। 4 बिट्स, यस करेक्ट। 4 बिट क्यों आया? 2 की तो पावर हेक्सा 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 क्यों लिया हमने? क्योंकि हेक्सा में टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट 16 है। 16 को 2 में कन्वर्ट करो, 2 के पावर में 2⁴। हाँ, 2⁴ करना पड़ता है ना, तो भी 16 आता है। तो इसका मतलब 2⁴ किया इक्वल टू 16 मिला। 16 मतलब कौन से? 0 से 9 और A to F, करेक्ट? यस सर। अब मुझे हेक्सा में 0 दिखाना है तो 2⁴ मतलब 4 बिट यूज करूंगा। 4 टाइम्स 0 0 0 0, तो वो हो गया डिजिट 0। अगर मुझे हेक्सा में F दिखाना है तो मैं 4 टाइम्स 1 यूज करूंगा, 1 1 1 1 4 टाइम्स, बाइनरी बिट की बात कर रहा हूँ, तो 4 बिट यूज करूंगा तो F आएगा। 4 टाइम्स 1 लिखो तो वो F हो गया, 4 टाइम्स 0 लिखो तो वो 0 हो गया। तो इसका मतलब 4 बिट यूज होते हैं। तो अगर एक डिजिट का 4 बिट है तो यहाँ पे कितने डिजिट है? तो कितने बिट का एड्रेस हुआ? अब काउंट करो। 64 32। हाँ 32, डिजिट 8 है मेरे पास, तो 8 4 32 है, तो उसके 4 बिट्स। F लिखा है 4 बिट्स, 9 उसके 4 बिट्स, 1 उसके 4 बिट्स, F F F सबके 4 4 4 बिट। तो टोटल डिजिट कितने हुए अपने पास? 1 2 3 4 5 6 8 8 डिजिट है और 4 बिट एक के हैं, ईच हैविंग 4 बिट्स, तो 8 4 32 बिट्स। हाँ, तो ये 32 बिट का एड्रेस है रैम का। और वो भी कैसा होगा एड्रेस? 32 बिट वाला बाइनरी होगा, करेक्ट? बाइनरी होगा कि नहीं? यस सर। यस हाँ, ये 8 लिखा है ना, 8 को बाइनरी बिट में बनाओ, तो 8 का वैल्यू क्या होता है बाइनरी बिट में? कोई कन्वर्जन नंबर सिस्टम याद है फटाफट? वो 8421 वाला पावर याद है किसी को? 8421। हाँ, तो 8 के लिए क्या आएगा वैल्यू? 1000, 4 बिट बोलना। चलो F के लिए बताओ क्या होगा? 100। F मतलब लास्ट वैल्यू हेक्सा में, F मतलब 1 1, हाँ 1 1 1 1। तो पहला वाला था 1 0 0 0, फिर 1 1 1 1, फिर 9 का वैल्यू 1001 1, करेक्ट 1001। 001। फिर है 1 के लिए 4 बिट,
0001। बराबर समझ रहे हैं आप लोग, एग्जैक्टली। बस ऐसे 4-4 बिट को मैं अगर पास में ज्वाइंट करता हूँ तो 32 बिट का एक एड्रेस बनेगा कि नहीं पूरा? यस सर। हाँ। Yes, sir. अब एक लेवल अंदर की बात और करते हैं। अगर आपको ये हेक्साडेसिमल का एड्रेस याद नहीं रहेगा तो क्या आपको कभी बाइनरी का जो पूरा पैटर्न का याद रहेगा कभी? कैन एनी No, प्रोग्रामर? sir. हाँ, not a single programmer in the world with the sharpest mind can remember these binary bits. 32 बिट का 8 एड्रेस, दूसरा 32 बिट वाला एड्रेस, फिर दोनों का एडिशन, उसका सिंगल अलग कोड बाइनरी में, फिर उसका आउटपुट आएगा उसका कोड बाइनरी में। These binary bits cannot be remembered by human beings. Yes, sir. हाँ, तो यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये एक्चुअली है तो 32 बिट्स, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिखाया उसने है हेक्सा में। Hexadecimal. हाँ, हेक्सा में बताया। अब है तो हेक्सा, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिखाता है वो वेरिएबल एक्स में, राइट? तो ये जो कन्वर्जन है कि बाइनरी बिट में से हेक्सा में से नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म वेरिएबल एक्स, ये कन्वर्जन वो हमारे सिंप्लीफाई के लिए करता है। बट प्लीज रिमेंबर, एक्चुअल प्रोसेस जो हो रहा है अंदर रैम के अंदर वो तो बाइनरी बिट्स में है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो Yes, तू sir. सोचो कि ये कंप्यूटर कितना फास्ट होगा कि इंटरनली 32 बिट्स का पूरा बिट स्ट्रीम बोलते हैं उसको, स्ट्रीम, बिट स्ट्रीम 32 बिट का जो है उसको दूसरे 32 बिट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करता है वो, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करता है। पर जब आउटपुट दिखाने की बात आती है तो वो अपने बाइनरी लैंग्वेज में आउटपुट नहीं दिखाता है, अदरवाइज कोई यूजर उसको समझेगा नहीं। वो बताता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो हमको बताया इंग्लिश में जैसे एक्स वाई वेरिएबल, किसी को बताएगा जर्मन लैंग्वेज में उनके सिंबल्स में, किसी को बताएगा चाइनीज लैंग्वेज में उनके सिंबल में, जापान में बताएगा जापानीज लैंग्वेज में, अफ्रीका में बताएगा अफ्रीकन लैंग्वेज में। आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. That's why I consider this computer as a magical box. How nicely and how fast it can convert these symbols into human readable form, and it shows us. अभी तो सिर्फ कैरेक्टर है, उसके बाद आप सोचो वो डायग्राम्स दिखाता है, उसके बाद आप सोचो वो कलर्स दिखाता है, नेक्स्ट आप सोचो वो वीडियो प्ले करता है, फिर सोचो वो ग्राफिक्स बताता है, फिर एनिमेशन, फिर 3D, फिर VFX, कहाँ तक आगे बढ़ गए अब तो, राइट? Yes, sir. तो ये सारा इतना ग्रोथ उसने किया है, उसके सबके रूट के अंदर ये बाइनरी बिट्स होते हैं। बट बिकॉज कि वो प्योर मैथमेटिक्स है, इट इज प्योर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स ही होता है बाइनरी बिट्स, मतलब कि 32 बिट तो 32 बिट एग्जिट, ना एक कम ना एक ज्यादा, उसका आंसर आएगा तो इतने ही बिट में आएगा, ना एक कम ना ज्यादा। इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन है, इसलिए वो आंखें बंद करके फुल स्पीड में सारे कैलकुलेशन कर लेता है। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ प्रोसेसर। तो अभी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, या तो प्रोसेसर बोलते हैं कि 64 बिट वाला प्रोसेसर या तो 32 बिट वाला प्रोसेसर। Yes, sir. तो ये वो 64 बिट या ये तो वो 32 बिट्स होते हैं। When you say my processor is of 64 bit processor, that means at a 1 second, below 1 second also, it can process 64 bits together. It can process this. हाँ, ये 32 बिट्स प्रोसेस कर सकता है, उतनी उसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं 32 बिट सर। 64 बिट प्रोसेसर पुराने थे, वो 16 बिट प्रोसेसर थे, 16 बिट का प्रोसेस कर पाते थे। तो उसके बाद एडवांस होके 16 का 32 हुआ, 32 का 64 हुआ, 64 का 128 बिट का प्रोसेसिंग हुआ, 128 बिट का पूरा स्ट्रीम लाइन में लगा दो, वैसे ही दूसरे 128 बिट का स्ट्रीम, ऐसे दूसरे बहुत सारे 128 बिट वाले स्ट्रीम ले लो, उन सबका प्रोसेसिंग इट कैन डू फास्टर। ओके, चलो, तो आज थोड़ा सा हम हमारे टॉपिक से थोड़ा साइड में हो गए, लेकिन आपको बताना जरूरी था। ये दो एड्रेसेस तो है। नाउ आवर पॉइंट वाज दैट कि x और r दोनों का एड्रेस सेम है, तो क्या मैं y असाइन करता हूं तो r का एड्रेस चेंज होता है? देखिए, कहना है कि पहला एड्रेस x का है, वैल्यू देखो 20 20 20 हो गए। मैंने बोला कि y की वैल्यू 20 थी, वो r के थ्रू जाके x में स्टोर होती है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन पहले और दूसरे स्टेटमेंट में देखो एड्रेसेस में बीच वाला एड्रेस r का है, क्या वो एड्रेस चेंज हुआ? हाँ, वो r वाला एड्रेस किसको रिफर कर रहा है? x वाले को ही कर रहा है, को y को रिफर नहीं कर रहा है, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो यस, y का एड्रेस तो नया है, कुछ 8F91FFF2 ये है,
तो ये एड्रेस आर को नहीं मिला, मतलब क्या हमारा जो सेकंड पॉइंट लिखा था फीचर का कि एक बार रेफरेंस वेरिएबल को आप किसी वेरिएबल के साथ लिंक कर दो, देन इट कैन नॉट बी रेफर टू एनी अदर वेरिएबल, किसी और को रिफर नहीं करवा सकते। तो हमने वो प्रूव करके दिखाया कि y की वैल्यू r वेरिएबल के थ्रू x में जाके स्टोर होगी, लेकिन r खुद कभी y को रिफर नहीं करेगा, वो हमेशा x को ही रिफर करेगा। बराबर है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। चलो, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट लिखा था ये वाला ऊपर, वंस इट इज मेड फॉर अ वेरिएबल, एक बार बना दिया, इट कैन नॉट बी मेड टू रिफर एनी अदर वेरिएबल। once it is made, once it is made to refer the variable, हाँ, it can made to refer another variable, नहीं कर सकते। ओके, चलो इसका और एक फीचर देखते हैं क्विकली। तीसरा फीचर है वेरिएबल एंड रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस are bonded very strong, okay, strongly, such that a change in one in another। तो ये कुछ समझ में आया आपको? यस, ये क्या बोलता है कि वेरिएबल और उसका रेफरेंस वेरिएबल दोनों बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, एक दूसरे से जॉइंट है। इट नेसेसरीली रिजल्ट्स इन अ चेंज इन अनदर, एक में चेंज किया तो दूसरे में चेंज होगा ही होगा। इसका एग्जांपल हमने नीचे दिखाया, देखो आपको, आई एम शोइंग द एग्जांपल ऑफ इट। ये रहा x प्लस प्लस किया मैंने, दिस इज x प्लस प्लस किया, तो उसके बाद देखा हमने कि x और r दोनों चेंज हो गए थे, राइट, मतलब 10 से 11 हो गए। उल्टा किया हमने, r में चेंज किया तो भी x और r दोनों चेंज हो गए। यस और नो? यस सर। यस सर। तो वो ये तीसरा फीचर ऐसा बोलता है कि वेरिएबल और उसका रेफरेंस इतनी स्ट्रांगली जॉइंट एक दूसरे से बॉन्डेड है कि आप वेरिएबल में चेंज करो तो रेफरेंस में चेंज होगा, रेफरेंस में चेंज करो तो नेसेसरीली कंपल्सरीली इट रिजल्ट इनटू चेंज इन वेरिएबल आल्सो। तो ये हमने आउटपुट देखा था, ये कंट्रोल F में, ये वाला। जस्ट अ मोमेंट, अच्छा, बैटरी लो का इंडिकेशन, आई जस्ट अ मोमेंट, चार्जिंग, हाँ सॉरी, इसलिए वो क्लोज हो गया। देखिए, पहले 10-10 बताया बराबर है, फिर x को चेंज किया तो 11-11 दोनों हो गए, फिर r को माइनस किया था तो वापस 10-10 दोनों हो गए। बस ये तीसरा पॉइंट है, वेरी इजीली अंडरस्टूड, राइट। तो ये एग्जांपल नीचे आ चुका है, नेक्स्ट लेते हैं। ऐसे उसके फीचर्स हैं, जस्ट टू वर्क इन वन ओनली, लाइक इंट, फ्लोट, डबल की जैसा ही रेफरेंस वेरिएबल and also be made to refer to a pointer। भी रिफर कर सकते हो उसकी तरह, जैसे इंट फ्लोट डबल में करते हो वैसे इसको भी रिफर टू पॉइंटर। मतलब आप जैसे पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं ना, सी में बनाया था पॉइंटर वेरिएबल, इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो फ्लोट को रिफर करता है, वो डबल को रिफर करता था, वैसे यहाँ से भी रेफरेंस वेरिएबल वो किसी पॉइंटर को भी रिफर कर सकता है। इसका एग्जांपल बताऊं, हाँ, जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक गेट सीएच के पहले अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर पी लेता हूँ, ये तो पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और मैं बोलता हूँ इंटीजर आरपी रेफरेंस पॉइंटर इक्वल टू पी का वैल्यू देता हूँ तो होगा डेफिनेटली स्टोर। और यहाँ पे आपको सी आउट के अंदर /n
आपको P और एंड RP दोनों का एड्रेस देखते हैं। वैल्यू तो बात की बात है, अभी तो सिर्फ पॉइंटर क्या है, एड्रेस देखते हैं तो आपको पता चलेगा। अगर आपको पॉइंटर P की वैल्यू को स्टोर करनी है तो कर सकते हो, दोनों के एड्रेस सेम रहेंगे। पॉइंटर P में कुछ वैल्यू स्टोर करनी तो कैसे रखता हूँ मैं, स्टार P इक्वल टू कोई वैल्यू, एड्रेस से और मैं बोलता हूँ कि मतलब ये P इज होल्डिंग 30 राइट नाउ, ऐसा हुआ। ओके, पॉइंटर P हमको तो एड्रेस देख करना है कि दोनों का एड्रेस सेम आते हैं कि नहीं। तो हाँ भाई, ये रेफरेंस वेरिएबल है RP, उसको सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल नहीं पॉइंटर वेरिएबल भी रिफर करवा सकते हो। दैट इज वन फीचर इज, वो हम करते हैं यहाँ पे रन करके देखेंगे। मुझे P का एड्रेस और P का एड्रेस सेम मिलना चाहिए। अगर ये तो वैल्यू बता रहा है अभी P मतलब क्या बताएगा, वो एड्रेस बताएगा, और RP क्या बताएगा, एड्रेस ऑफ RP। हाँ ओके, P will show the address and RP will show the address of RP, मतलब वो पॉइंट कहाँ कर रहा है, वो दोनों चीज बताएगा एड्रेस से। तो ये फोर्थ जो फीचर था वो बता रहा हूँ मैं। इंटीजर पॉइंटर P, ये क्या हुआ, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यस और नो? यस सर। यस सर। राइट, एंड मैं लिखता हूँ सेकंड स्टेटमेंट पॉइंटर P इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या हुआ, 30 स्टोर हो गया, 30 स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया लेकिन, पॉइंटर P पॉइंटर P में, राइट। मतलब P जिसको पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे जाके स्टोर करो। ओके, तो ये जो है ना स्टार P, ऊपर पॉइंटर, यहाँ पे स्टार इज used to show the type of a variable, स्टार मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल है, टाइप बता रहा है। स्टार यूज किया हमने, वही स्टार है, लेकिन स्टार इज यूज्ड एज वैल्यू एट ऑफ अ वेरिएबल, बराबर ना, ऑफ एन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ऐसा हुआ। ये दोनों सेंटेंस समझो। ये डिक्लेरेशन के अंदर जो स्टार यूज करते हैं ना, तो वो उस P वेरिएबल का टाइप बताता है, वो किस टाइप का वेरिएबल है, सिंपल है कि पॉइंटर वेरिएबल है। और ऐसे नॉर्मल स्टेटमेंट में यूज करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन वैल्यू एट। हाँ, तो ये ऐसा बोलेगा मीनिंग कि भाई स्टार मतलब वैल्यू एट P पे कौन सी वैल्यू रखो, 30, तो 30 जाके कहाँ स्टोर होगा, तो भाई वैल्यू एट P, हम ऐसा बोलते हैं उसको। तो स्टार इज यूज्ड एज वैल्यू एट, बराबर है, सेकंड टाइम पे। और पहले वाले में सिर्फ टाइप बताता है वो कौन सा टाइप का वेरिएबल है। ये तो जाने तो पॉइंटर का कंसेप्ट था, सी में पॉइंटर कर चुके हो। हमारा कंसेप्ट ये है, RP के अंदर P स्टोर कर दिया तो सी आउट के अंदर दोनों का एड्रेस बताना चाहिए। नॉर्मल P मतलब एड्रेस बताएगा, बराबर है, नॉर्मल P मतलब एड्रेस बताएगा, और एड्रेस ऑफ RP मतलब उसका एड्रेस बताएगा RP का, वो किसको रिफर कर रहा है। लेट अस सी, कंट्रोल F9, एरर क्या है बताइए, कहाँ हुआ, क्या लिखा था, टेम्पररी यूज्ड टू इनिशियलाइज RP, टेम्पररी यूज्ड टू इनिशियलाइज RP तो है हमारा। अच्छा, इंटीजर पॉइंटर को रिफर कर रहे हैं, लेकिन वो टाइप, हाँ, इंट पॉइंट एट RP। F2 में बताओ क्यों ऐसा है। यस, क्लियर। हाँ, हमको क्या बताना है कि ये जो RP जो है वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप होगा यस सर। पॉइंटर या तो एड्रेस हम बोल सकते हैं, वैल्यू नहीं, वो एड्रेस है। तो वो पॉइंटर है, वो एड्रेस है, इस बताने के लिए उसको इंटीजर स्टार बता दिया। तो उसका टाइप नॉर्मल इंटर नहीं, नॉर्मल इंटर तो वैल्यू होती, और हम P पे जाएंगे तो हमको एड्रेस मिलेगा, राइट।
पॉइंटर पे हमको एड्रेस मिलता है और उस एड्रेस पे जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी। इसलिए ये जो p है, ये p ऑल्सो होल्ड एड्रेस राइट नाउ, और उसका रेफरेंस वेरिएबल जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो भाई एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इंटीजर पॉइंटर लिया, ठीक है, मतलब वो एड्रेस बताता है। अब उसको रन करते हैं, लेट अस सी द आउटपुट। ये तो बराबर था, ये भी बराबर था। हाँ ये देखिए लास्ट लाइन ऑब्जर्व करो, दोनों एड्रेसेस सेम है, मतलब आरपी का एड्रेस और पी के अंदर जो पड़ा है वो एड्रेस दोनों सेम है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंटर वेरिएबल भी रिफर हो सकता है एज अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, वो भी रिफर हो सकता है। नहीं सेम लग रहा है, कहाँ गया? अच्छा पी के अंदर वैल्यू, हाँ एक मिनट, तो हमने क्या लिया? अच्छा आरपी का वैल्यू नहीं लिया हमने, एड्रेस ऑफ आरपी लिया, आरपी का खुद का एड्रेस लिया F2। एक मिनट सेव, हाँ देखो अभी क्लियर है राइट। हाँ नाउ यू कैन सी बोथ आर सेम। यस सर। આનું મેમ આવે એટલે સહી કર્યા પછી આને મૂકવાનું છે, એટલે મેમ આજે બપોર આવે ને ત્યાં અમુક કાગળ બાકી છે કે પછી આમાં। हाँ तो ये एक और फीचर था कि अगर रेफरेंस वेरिएबल को, ये रहती है यहाँ पे, ये रेफरेंस वेरिएबल जो है r, उसको अगर तुम x को रिफर करवा सकते हो नॉर्मल को, तो वैसे ही उसको आप पॉइंटर वेरिएबल से भी रिफर करवा सकते हो इस तरह से। ये रहा, इट कैन रिफर टू अ पॉइंटर वेरिएबल आल्सो, यही बताने के लिए, मतलब ये भी एक फीचर हुआ, इट कैन रिफर टू नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल आल्सो, बराबर है। चलो क्विकली बाकी की सर हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट? सर आમાં ડાયરેક્ટ એડ્રેસ કઈ રીતના સર એમ પર્સનલ ગ્રુપ જો પી છે ને, પી એ પી ની અંદર એડ્રેસ પડ્યો હોય, करेक्ट। पी आ खुद, सॉरी ये खुद पी जो है ना वो तो पॉइंटर वेरिएबल है राइट, ये तो पी की वैल्यू बताएगा वो, यस और नो? यस सर। हाँ, और आरपी जो है, आरपी किसको रिफर कर रहा है? वो भी पी को रिफर कर रहा है, पी को, तो आरपी के थ्रू भी वो पी की वैल्यू बताएगा। जैसे वो ऊपर एक्स और ये बता रहा था, कहाँ गया हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेटमेंट? देख लो, चलो ये रहा, ये वाला, यहाँ x के अंदर जो वैल्यू बताई थी r के अंदर भी वही वैल्यू बताई जो x की वैल्यू थी, राइट? यस सर। बस इसी रेफरेंस में अगर नीचे देखोगे तो p जो है, p के अंदर एड्रेस पड़ा होगा, बराबर है, तो वही एड्रेस या rp के थ्रू भी दिखना चाहिए हमको। तो अभी क्लियर हुआ? बस, तो इसलिए दोनों का एड्रेस सेम बता रहा है। अगर आपको 30 दिखाना है, 30, कोई बोलेगा मुझे 30 वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताना चाहिए बोलो? मुझे वैल्यू 30 बतानी है, एंड निकाल दो, एंड निकाल दो। कहाँ से? नहीं, पॉइंटर वेरिएबल जो है ना p, ये रहा, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। પોઈન્ટર को निकालना पड़ेगा सर। फिर ये बोला हमने कि उस पॉइंटर पे जाके जो भी एड्रेस होगा उसके अंदर के वैल्यू स्टोर करो 30। अब जब भी आप p लिखते हो तो वो एड्रेस बताता है, और मुझे उसकी वैल्यू दिखानी है तो हम ऐसा नहीं लिखते स्टार, हाँ स्टार p, इसको बोलते हैं वैल्यू एट p, इसको बोलते हैं वैल्यू एट p। p एड्रेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू बताओ। तो जब भी नॉर्मल p लिखोगे तो पॉइंटर वेरिएबल उसके अंदर एड्रेस पड़ा होता है, वो एड्रेस बताएगा। जब भी आप स्टार p लिखोगे तो उस एड्रेस पे हाँ तो वैल्यू बताएगा। देखो कंट्रोल F9 देखते हैं, देखो 30 आया कि नहीं लास्ट में, वो स्टार p का इफेक्ट है। यस, ये तो आपका सी टाइम का जो पॉइंटर था वो भी यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। सी टाइम का जो पॉइंटर था उसका कंसेप्ट यहाँ पे रिफ्रेश हो गया कि भाई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके ऊपर जाके वैल्यू असाइन हुई, एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, वो पॉइंटर को रिफर कर रहा है। तो p के अंदर और rp के अंदर दोनों एक ही एड्रेस को रिफर करेंगे, इसलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वो पॉइंटर को भी रिफर कर सकता है, और फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दिया हमने सिर्फ इस तरह से। यस सर। अब मुझे rp का यूज करके वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? यस सर। ऐसा लिखना चाहिए, और इसकी वैल्यू यस सर। दोनों की 30 बतानी चाहिए। सेव करता हूं मैं, अल्टर F9, एरर बोलो नहीं, और कंट्रोल F9। देखो कैन यू सी, दोनों 30 आ गए।
हाँ, तो ये एक और एक फीचर हो गया। देखो, तो देखो रेफरेंस वेरिएबल कितना स्ट्रांग है, कितने सारे उसके यूजेस है। चलो एक नेक्स्ट क्विकली लेता हूँ, 5 6 7 तीन ही पॉइंट है और रेफरेंस वेरिएबल के ही पॉइंट है। यू कैन यूज देम एज अ आर्गुमेंट टू फंक्शन। मुझे उसको दिखाने के लिए कुछ मुझे फंक्शन यूज करना पड़ेगा, अगर आपको फंक्शन बताना पड़ेगा। अच्छा, the major advantage of it is in passing them as arguments to functions. फंक्शन पे आप पास कर सकते हो एज अ आर्गुमेंट। पॉइंटर से पास करोगे, उसके बदले एज अ रेफरेंस वेरिएबल पास करोगे तो डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा। वो क्या है मैं सिंपल बता देता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ मैं यहाँ पे। चलो एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, जैसे void incr मतलब इंक्रीमेंट, बराबर है, और ब्रैकेट में एक इंटीजर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाहिए मुझे। और इसमें क्या होना चाहिए फंक्शन के अंदर, चाहिए तो आपका ये है ना, ये भी एक बता देता हूँ। चलो ये इसी के साथ एक पॉइंट और भी कवर हो जाएगा। सी में क्या कर रहे थे आपको पता था? एक मिनट, ये रहा सेमीकोलन। ये क्या हो गया? फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर मेन के अंदर फंक्शन यूज करते थे हम लोग, जैसे मेन के अंदर फंक्शन यूज करता हूँ, ये चलो गेट सीज के ऊपर incr इज अ फंक्शन, और उसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल में पास करता हूँ लेट अस से r। ये इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग, बराबर ना? और ऊपर क्या बोलते थे? फंक्शन डिक्लेरेशन। हाँ फंक्शन, हाँ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऊपर होता था, मेन से ऊपर डिक्लेरेशन, फंक्शन का कॉलिंग होता था, और मेन के बाहर ये हम सी वाला करते हैं, राइट? मेन के बाहर void incr इंक्रीमेंट, ब्रैकेट में इंट टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल आएगा, उसको नाम देते हैं कुछ भी, r1। ऊपर अंदर r दिया था ना, यहाँ पे r1 कर देता हूँ मैं तो भी चलेगा। तो ये बॉडी पार्ट, तो इसको यहाँ, इसको क्या बोलते थे? फंक्शन डेफिनेशन, प्रोटाइप मतलब, हाँ डेफिनेशन, प्रोटाइप वर्ड इसमें आएगा अपने में, इसलिए। अब देखो ये सी वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले। सी में whenever you write down function it has 3 places। फर्स्ट पॉइंट, मेन के ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, फिर ये मेन के अंदर आ गए तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, मतलब नीचे यहाँ पे जहाँ पे यूज किया ना उसको बोलते कॉलिंग, है ना? और मेन के नीचे आफ्टर द मेन बाहर फंक्शन को डिफाइन करते थे। तो डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन, ये तीन उसके सी के कंसेप्ट थे आपके। तो अगर हम कोई वेरिएबल पास करते हैं एज अ रेफरेंस वेरिएबल आर्गुमेंट टू फंक्शन, ये n% r1 मतलब वो हमने ये रहा जो r वेरिएबल पास किया है ना, वो रेफरेंस वेरिएबल है अंदर फंक्शन कॉलिंग में पास किया। देखो कैन आई से r इज पास्ड एज अ आर्गुमेंट टू फंक्शन, बराबर ना? यस सर। वेरिएबल r इज पास्ड एज अ आर्गुमेंट टू फंक्शन इंक्रीमेंट। ओके, और क्या होना चाहिए उसके अंदर? तो भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्या इंक्रीमेंट होना चाहिए? तो भी r1 प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? जो वैल्यू पास होगी उसमें 5 प्लस कर दो। हाँ करेक्टली, जो रेफरेंस वेरिएबल r1 है ना, उसको ओरिजिनली हमने क्या नाम से पास किया है? r नाम से, बराबर है? तो उसकी वैल्यू हम 5 से बढ़ा रहे हैं और वहां पे डिस्प्ले करवा रहे हैं सी आउट में। वी आर डिस्प्लेइंग आल्सो, ठीक है? तो रेफरेंस से ऐसे पास करेंगे तो ये r1 सीधा यूज किया। अगर ये पॉइंटर से पास करते तो यहाँ पे आपको स्टार पी लिखना पड़ता, करेक्ट? इफ यू रिमेंबर, ये जो ऊपर पॉइंटर है ना, हाँ, तो पॉइंटर वेरिएबल जब भी पास करते हो तो उसको ऐसे आपको क्या बोलते हैं, एड्रेस से, मतलब एम्परसेंड से पास करना पड़ता है पॉइंटर वेरिएबल, और उसको अंदर आते हैं तो स्टार करके उसको यूज करना पड़ता है। ये फायदा है कि जब भी रेफरेंस वेरिएबल पास होता है तो उसको ऐसा नॉर्मल वेरिएबल ट्रीट कर सकते हो। नॉर्मली इसे r1 प्लस प्लस लिखो तो काम हो जाता है।
और यही अगर मैंने पॉइंटर पास करता तो मुझे एम्परसेंड के साथ पास करना पड़ता वैल्यू, और फिर यहाँ पे स्टार करके यूज करना पड़ता, वो एक डिफरेंस था। तो पहले हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। F2, यस, कंट्रोल F9, एरर है कुछ नहीं, कंट्रोल F9। तो गेट से पहले जो इंक्रीमेंट लिखा है उसका R1 का वैल्यू चेंज होना चाहिए, कंट्रोल F9। चलो ये तो नॉर्मल था, हमारी वैल्यू 10 थी, 11 हुई, वापस 10 हुई, मतलब R के अंदर अभी 10 स्टोर है। बाद में 20 भी हुई। तो हाँ 20 वाई के टाइम पे 20 हो गई थी, तो 20 + 5 की तो 25 हो गया। देखो लास्ट में 25 बता रहा है, राइट। तो वैल्यू तो 25 बताएगा। हमारा कंसर्न ये है, फिर से देखिए, द मेजर एडवांटेज ऑफ इट इज इन पासिंग देम एज आर्गुमेंट टू फंक्शंस। किसी भी फंक्शन को आर्गुमेंट पास करनी है तो आप रेफरेंस वेरिएबल पास कर सकते हो। तो उसका मीनिंग ऐसा हुआ, देखो इस तरह से ये डिक्लेरेशन बता रहा है कि आपका रेफरेंस वेरिएबल पास हो रहा है, ठीक है। और अगर मुझे पॉइंटर पास करना पड़ता तो हम कैसे पास करते हैं, एक एग्जांपल बताऊं इसी लाइन को। ऐसा नहीं लिखते आप लोग, INCR कुछ भी नाम लिखो ना, अभी तो सेम नाम इसे वैसा बता रहा है। void INCR1, क्यों void नहीं ले रहा है वो, लेट मी फाइंड आउट। नॉर्मल टाइपिंग तो अलाउ करना चाहिए ना, हाँ void INCR1, हाँ नाम हो गया इंटीजर स्टार, ऐसा होता है, बराबर है, सेमीकोलन। अगर आप पॉइंटर से पास करते तो आप ऐसा पास करते, यस और नो? यस यस। हाँ, तो ये पॉइंटर से पास करते। अगर ऐसा पास करते तो आपको नीचे डेफिनेशन में, मतलब बॉडी पार्ट में आपको स्टार P यूज करना पड़ता, स्टार के साथ। तो वो करने के बजाय आप अगर ये ऐसे ऊपर वाला ये ऐसा करते हो आप लोग, तो एज अ रेफरेंस वेरिएबल भी पास हो सकता है आर्गुमेंट में। और उसको नीचे मेन के अंदर देखो, मेन में हमने कॉलिंग किया है, वहाँ पे यहाँ पे R जो है वो रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए, वो पास किया। और मेन के बाद जहाँ डेफिनेशन लिखा है, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी पार्ट बोलते हैं, उसके अंदर आपने उसको सीधा यूज कर सकते हैं, ऐसे R1 सीधा यूज कर लिया। अगर पॉइंटर होता ना तो आपको ऐसे यूज करना पड़ता, वैल्यू एट P इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ यूज करना पड़ता। वो यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाता है। इवन ये रेफरेंस वेरिएबल है ना R1, वो रिफर कर रहा है किसको, R को। R किसको रिफर कर रहा है, X को, हाँ राइट। और R रिफर कर रहा है X को। तो अगर हम ये प्लस प्लस कर देते और ये सी आउट ना लिखो, यहाँ पे फंक्शन के अंदर ना लिखो, और सी आउट यहाँ मेन के अंदर लिखो, सी आउट स्पेशल, और वैल्यू किसकी डिस्प्ले करूँ मैं, R की डिस्प्ले करूँ या X की करूँ, तो अभी सेम ही हुआ ना। तो X की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। बोलो समझ में आया कुछ? यस सर यस हाँ सर। राइट। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख दूँ, R1 represents R which refers to X वेरिएबल, बराबर ना? क्लियर हो गया, बोलो। यस R1 फंक्शन के अंदर है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है R को, और R जो है which refers to X वेरिएबल। तो अगर R1 में कुछ चेंज किया तो इनडायरेक्टली किस में चेंज हुआ, X में हुआ होगा। यस सर। अगर हुआ है तो मेन के अंदर X को प्रिंट करके दिखाओ। अगर X की वैल्यू चेंज है, इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम सही है। तो मैं इसका सी आउट यहाँ से निकाल देता हूँ। चलो अब तो आपको क्लियर हो गया सबको। आई रिमूव दिस, वेरी गुड। आई रिमूव दिस, F2 सेव किया, कंट्रोल F9 रन करते हैं, एंटर। देखो ये 25 प्रिंट हुए, लेकिन वो किसकी वैल्यू है, X की वैल्यू है। और कहाँ प्रिंट हुआ है, मेन के अंदर, करेक्ट। बोल समझ में आया सबको, समझ में आया सबको इतना? यस सर परफेक्ट। वेरी गुड। चलो तो 1 2 3 4 5 अभी 5 ही रखते हैं, ओवरलोड नहीं होने देना है। 6 और 7 वाले 2 पॉइंट है फीचर्स के, वो बाद में देखेंगे। और हमने आज 5 फीचर देखे रेफरेंस वेरिएबल के, और एक बार यूज करने पे पता चला कि रेफरेंस वेरिएबल इन C++ इज अ वेरी बिग फैसिलिटी एंड इट कैन यूज टू हाइड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। Names which are should not be shown to the user can be hide from this। तो मुझे X नाम का वेरिएबल है, वो यूजर को नहीं दिखाना है, तो मैं हर जगह पे R को यूज कर सकता हूँ कहीं भी।
इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस एक्स, मैं अगर आर को यूज करूं काम तो मेरा वही होगा, लेकिन दिखेगा क्या, आर दिखेगा। ये उसका एडवांटेज है, ठीक है। और ये पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, उसके ये सारे अलग अलग फीचर्स हैं। तो 5 फीचर अभी रखे हमने, 6 और 7 2 फीचर्स हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज मुझे ओवरलोड नहीं करना है इसलिए, ठीक है। ओके यस सर। हाँ चलो, तो और ये आज के प्रोग्राम में हमने ये वाला फंक्शन वाला कंसेप्ट भी आ गया। तो सी के अंदर पॉइंटर और सी के अंदर फंक्शन, ये दो चीज आपने देखी थी, वो भी यहाँ पे आपको रिवाइज हो गया कि फंक्शन की 3 प्लेसेस होती है, तीन उसके लोकेशन होते हैं। बिफोर मेन जो फंक्शन लिखते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं बिफोर मेन फंक्शन डिक्लेरेशन। हम नॉर्मली इसको उस टाइम पे ऐसा सिखा देते हैं, बिफोर मेन के पहले था। दूसरा जो आता है इनसाइड मेन फंक्शन कॉलिंग, उसको हम बोलते हैं इनसाइड मेन के अंदर हो गया। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, बोलते हैं आफ्टर मेन। हेलो सर। तो बिफोर में, हाँ बिफोर मेन, इनसाइड मेन, आफ्टर मेन, ऐसा है। हाँ बोलो सर जहाँ यस। फंक्शन डिक्लेरेशन है सर वहाँ पे सर ऊपर करो सर। हाँ ये रहा फंक्शन जो डिक्लेयर हो रहा है। सर यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लिखेंगे तो चलेगा सर? यहाँ पे टाइप बतानी पड़ती है, यहाँ पे वेरिएबल नेम ना लिखो ना कोई तो चलेगा, पर डेटा टाइप तो बतानी पड़ती है ना। बस सर इंट, जो डिक्लेरेशन, हाँ हाँ बोलो। सर इंट 2 बार लिख दे। हाँ नहीं, इंट रेफरेंस ये उसका टाइप है, रेफरेंस वेरिएबल का टाइप है। जैसे पॉइंटर होता तो इंट पॉइंटर लिखते, तो इंट रेफरेंस वेरिएबल, ये इंट रेफरेंस, ये रेफरेंस वेरिएबल का टाइप है, वो टाइप देना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे ऐसा भी लिखते थे, देखो है ना, एंड को एड्रेस नहीं बताता। हाँ एंड जब पास करते हैं नीचे मेन में तब एड्रेस बताता है, पर यहाँ पे तो टाइप बताएगा। अभी हमारा ये टाइप नहीं है, कहाँ गया आर जहाँ डिक्लेयर किया है वो, ये रहा इंट रेफरेंस है ना, तो ये आर हाँ ये आर वैल्यू टाइप बता रहा है। और हम दूसरा एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ पे जस्ट ध्यान रखने के, सी का रिपीट हो रहा है लेकिन बिफोर मेन, यहाँ पे ओनली टाइप यूज होती है, ओनली टाइप बतानी होती है। ब्रैकेट मेन होता है, मेन के अंदर कहाँ गया, इनसाइड मेन वाला, ये रहा इनसाइड मेन, ओनली वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल पास करते हैं। ब्रैकेट लिखता हूँ मैं तो पता चल जाएगा, चलो हाँ ब्रैकेट में ओनली वेरिएबल, और ऊपर जो था वो ये रहा ओनली, ब्रैकेट में सिर्फ टाइप लिखनी होती है, ब्रैकेट की बात चल रही है। और जो आफ्टर मेन है कहाँ गया, ये रहा, इसमें टाइप और वेरिएबल बोथ दोनों आने चाहिए। अब इसको मैच करो, चलो हम ऐसा बोलते हैं फिर से, ओनली टाइप मतलब ये जो इंक्रीमेंट वेरिएबल फंक्शन का नाम है उसके ब्रैकेट में सिर्फ डेटा टाइप दिख रही है आपको, ओनली डेटा टाइप, बराबर है। हाँ चलो मेन में आया तो मेन ये रहा, यहाँ पे फंक्शन जो होता है उसके ब्रैकेट में क्या है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा है, इसलिए ओनली वेरिएबल आता है। बट यहाँ पे जो है मेन के बाद उसमें क्या हुआ, फंक्शन के अंदर टाइप एंड वेरिएबल बोथ दोनों आता है, बराबर है। टाइप भी आया, इंटीजर भी लिखा और वेरिएबल का नाम भी लिखा, टाइप एंड वेरिएबल बोथ। तो ये भी एक वेरिएशन याद रखना है, तो चेंज याद रखना है कि एक तो बिफोर मेन, इनसाइड मेन, आफ्टर मेन, बिफोर मेन, इनसाइड मेन और आफ्टर मेन, ये 3 चीज होती है। दूसरा ओनली टाइप, ओनली वेरिएबल, और नीचे टाइप वेरिएबल बोथ दोनों आते हैं। यस सर, बराबर है। तो इससे आपका सी का फंक्शन भी पूरा रिवाइज हो गया। थैंक यू सर। अब हम ये देखेंगे, वेरी गुड, अब हम देखेंगे कि C++ जो है वो आपको इसको और छोटा करने को हेल्प करता है। वो ऐसा बोलता है कि ये बॉडी पार्ट है ना पूरा, ये यहाँ से उठा के आप सीधा ऊपर जो डिक्लेयर किया ना वहां लगा दो, बॉडी पार्ट यहाँ से उठा दो, कट कर दो यहाँ से, और वो सीधा जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे ना आप, कहाँ गया ये डिक्लेरेशन, यहाँ पे ही उसका बॉडी पार्ट भी लिख दो साथ में। तो C++ ये अलाउ करता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ये प्रोटोटाइपिंग वाला पॉइंट आपका इसमें आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ गया, हाँ जो कहीं लिखा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइपिंग लिखा है ना। यस सर। ये टॉपिक अपना वो वाला टॉपिक है जिसमें हम मेन के नीचे जो लिखते हैं बॉडी वाला पार्ट, वो पूरा उठा के मेन से पहले ही डिक्लेरेशन के साथ ही हम लगा दें। तो डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन वो मिला के बोलते हैं प्रोटोटाइप। अभी एक स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा था कि प्रोटोटाइप वो होता है जहाँ पे डिक्लेरेशन भी हो और डेफिनेशन भी हो,
बराबर है। हाँ, तो वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कैसे होता है। हमको नीचे वाला जो पार्ट था, बॉडी वाला पार्ट, वो बॉडी वाला पार्ट हम यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ लगा देंगे, तो मेन वाले फंक्शन को बार बार नीचे जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं से उसको ले लेगा। वी विल सी दैट। ओके, यस सर। तो आज इतना रखते हैं। हाँ यस, F2 सेव करता हूँ मैं। हाँ, आई इंसिस्ट कि 6 और 7 होने के बाद पूरा ले लो आप, क्योंकि वो 2 फीचर के कोड भी आएंगे इसमें। ओके सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। 8 हो सकता है, मैं जस्ट सिलेक्ट करता हूँ। चलो, फर्स्ट वन इज सिलेक्टेड लाइक दिस। नहीं, वो ऊपर चला गया। हाँ, ये पहला स्क्रीन है आपका। डन। ओके, पेज डाउन करता हूँ मैं। int x से नीचे आया, ये आपका सेकंड स्क्रीन है। int x, हाँ ये आपका सेकंड स्क्रीन। ओके, एंड थर्ड वन नाउ, ये आपका फंक्शन ओवर। बराबर थी, और उसका अल्टर F5 स्क्रीनशॉट लेके रखो। फिर आपको इसको रिफर करना है, सिर्फ आपको है ना ये आउटपुट के अंदर सिर्फ टिक मार्क करना है कि ये स्टेटमेंट का ये आउटपुट है, जस्ट रिफर करने के लिए याद रहेगा। ठीक है, ओके गुड। डन। तो आई होप कि आज का सेशन अपना, यस, आई होप कि आज का सेशन अपना यूजफुल रहा और हमने 2 पॉइंट सीखे। एक तो ये कि वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो यूज करने से पहले, जहाँ यूज करना है उसके पहले उसको डिक्लेयर कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये सीखा कि रेफरेंस वेरिएबल नाम की चीज होती है C++ में, और उसके बहुत सारे यूजेस, उसके फायदे हैं। बराबर, यस सर। इसका सेशन यहाँ क्लोज करते हैं। इसके बाद आपका कोई सेशन नहीं है आज के लिए। यू हैव, दिस इज द लास्ट लेक्चर। ओके।